میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر کو چینج کر کے ایک شاعرہ کو آپ کے بیچ مائک پر آواز دیں. اور میں جس شاعرہ کو بلانے جا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کا نام لوں گا تو پھر آپ ایک بار چونکیں گے، کیونکہ نسائی شاعری میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، گھر آنگن کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شاعرہ گھر آنگن کے مسائل اور محبوب سے ملنے بچھڑنے کے ذکر کے ساتھ ساتھ سماج کی ناہمواریوں کو بھی آئینہ دکھائے، سیاست کی کرم فرمائیوں کو بھی آئینہ دکھائے، تو وہ محترمہ شبینہ ادیب کا کلام بن جاتا ہے. میں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اب شبینہ ادیب صاحبہ کو میں نے آپ کی فرمائش پر آواز دی ہے مائک پر، تو آپ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کس طرح سے ان کا استقبال کرتے ہیں. انہیں یہ یقین دلائیے کہ آپ انہیں اسی طرح سے اسی محبت سے سننا چاہتے ہیں جیسے لکھنؤ میں انہیں سنا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے حکم ہوا اور میں حاضر ہو گئی. آدرنیہ جی بالکل انشاءاللہ. آدرنیہ شیو پال یادو صاحب، میرے محترم احمد حسن بھائی، عباد بھائی اور محترم منظر بھائی، جن کے حکم پر اس خوبصورت محفل میں میری حاضری. سیدھے سیدھے چاہتی ہوں کہ آپ میری شاعری میں شریک ہوں اور جس طرح اس چھوٹی سی شاعرہ کو اپنی شفقتوں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں اسی طرح نوازیں. پیش کرتی ہوں 4 مصرے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. ملاحظہ کیجیے گا، اس کے بعد جیسا انشاءاللہ آپ حکم دیں گے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی. کوشش کروں گی کہ آپ کے حکم کی تعمیل بھی کر سکوں. ملاحظہ کیجیے گا جی، دیکھیے گا. کلام رب، کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. میری بہنوں کھلے سریوں سری بازار مت نکلو. میری بہنوں کھلے سریوں سری بازار مت نکلو. تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے. شبینہ صاحبہ واہ واہ. میں سمجھ رہی تھی کہ آپ سب سنیں گے اس طرح کی شاعری. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اپنی بہن کو اپنی دعاؤں سے نوازا، آپ کی محبتیں ملی، آپ خوش ہوئے. شکر گزار ہوں. پھر سے پڑھتی ہوں، آپ کا حکم ہے میں پڑھتی ہوں. کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. اس کو ہٹا دیجیے، وہ شاید ان کو اسے ہٹا دیجیے، اگر یہ ہٹ جائے. میں بھی نہیں چاہتی کہ بھائی بہنوں کے بیچ میں کوئی دیوار آئے. میں پڑھتی ہوں. کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. میری بہنوں کھلے سریوں سرے بازار مت نکلو. میری بہنوں کھلے سریوں سرے بازار مت نکلو. تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے. تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے. دعائیں ملی، بہت اچھا لگا. وہی ماحول دیا جس ماحول میں آپ اس چھوٹی سی شاعرہ کو سنتے ہیں. بارہا کوشش کرتی ہوں کچھ اور شعر سے آپ کی خدمت کر کے جاؤں. بہت ہی مہمانان محترم شخصیات اور بڑے ہی معتبر سماتے ہیں. پیش کرتی ہوں چند شعر. ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیں ملاحظہ کریں، دیکھیں
नहीं, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मैं मुझे इजाज़त दे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। नहीं, बिल्कुल अहमद हसन भाई की दुआएं मिल रही हैं और आप सबकी दुआएं मोहब्बतें मिल रही हैं। कोशिश करती हूँ, हौसला करती हूँ कुछ पढ़ने का। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, सुनिए, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता, कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, आप उस तरह से थोड़ा सा खामोश हो गए जैसा आप सुन रहे थे, जिस अंदाज में। बहरहाल महसूस कर रही हूँ कि आप अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं, लेकिन एक शेर में मैं चाहती हूँ कि आप सब शिरकत फरमाएं, अपनी दुआओं से मुझे नवाजें, जहाँ जहाँ तक आप सबकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है। डाइस से भी दुआएं चाहते हैं और आप सबसे भी देखें। जी इरशाद पढ़िए। किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, 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 शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पेश करती हूँ। किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। एक शेर अपनी पसंद का पढ़ती हूँ। मेरे मोहतरम राहत भाई अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ कहें उनके लिए मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उनकी दुआएं मिलती हैं। ये मेरी खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है। आप सबकी दुआएं मिलती हैं। शेर पढ़ती हूँ अपनी पसंद का, दुआएं चाहती हूँ। हवा हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। मैं बार बार आऊँ जाऊँ, एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहती हूँ। बहुत ही मोतबर समाते हैं, बारहा मुझे दुआएं मिलती हैं। हौसला करती हूँ एक गीत पढ़ने का। आदरणीय शिवपाल यादव साहब, अहमद हसन भाई, बहुत सारी मोहतरम शख्सियतें जी। ये एक फरमाइश है आपकी, देखिए। अरे भाई देखिए, फरमाइश है, ये गीत आप बहुत सुनते हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं आप सबके कर दो कोई सा, मैं कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आप सब जो मुझे हुक्म दे रहे हैं, बहुत सारे गीतों के लिए मुझे हुक्म है। मैं कोशिश करती हूँ कि एक गीत आपके हुक्म की तामील करती हूँ और एक गीत मैं चाहती हूँ कि आपके हुक्म की तामील करूँ और वो गीत पढ़ूँ जिसके लिए मुझे आप हुक्म दे रहे हैं।
इंशाल्लाह बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं इतने सारे गीत तो नहीं पढ़ सकती, बहुत लोगों की फरमाइशें हैं। मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि मैं वो गीत जो आप सबके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ पढ़ूँ। सुने। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। बंद पेश करती हूँ। एक एक हिंदुस्तानी की शिरकत चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इस गीत में आप सब शरीक हो जाए और मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। देखें। चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाए, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाए, चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाए, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाए। गद्दारों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जब आप अच्छी तरह से सुनने लगते हैं तो मेरा गला भी अच्छा ही रहता है, मैं उसी तरह से पढ़ती भी रहती हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा भी बखीली से काम लेते लगते हैं तो ये आवाज़ भी ख़राब होने लगती है, ऐसा पता नहीं क्यों है। बहरहाल फिर भी हौसला करती हूँ पढ़ने का, बंद पढ़ती हूँ। देखें। जिन लोगों को भी जाना था, जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची। हमको नाज है इस धरती पर, अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची। हमको नाज इस धरती पर, अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है, सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है। सारे बाग हमारे हैं, हर रेगिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। और बतौर खास ये बंद पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि हमारा मजहब, हमारा ईमान हमसे क्या कहता है। आप सबको शरीक करती हूँ, आप सब इस बंद को संभालिए। आप सबके लिए पढ़ती हूँ, आप सबकी तरफ से पढ़ती हूँ। देखें। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपने रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम, अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है वो कुरान हमारा है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, मैं आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। जी जी बिल्कुल आपका हुक्म पढ़ती हूँ कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम, अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है वो कुरान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार और पढ़ती हूँ और
और आप सभी के इस बंद के लिए भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, देखिएगा कि हमको निकम्मा कहने वालों ज़हन को पीछे पलटो, आज़ादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। शुक्रिया। हमको निकम्मा कहने वालों ज़हन को पीछे पलटो, आज़ादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबाया वो तूफान हमारा है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ कि मैं बिल्कुल आपका हुक्म है, मैं आपके हुक्म में तामील करती हूँ और ये बंद आप सबकी खिदमत में दोबारा पढ़ती हूँ। आप सब मुझे हुक्म दे रहे हैं, शुक्रिया। हमको निकम्मा कहने वालों ज़हन को पीछे पलटो, आज़ादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबोया वो तूफान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। दुआ के तौर पर एक बंद पढ़ती हूँ आप सबकी खिदमत में, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। सारे मुरझाए चेहरों पर रंग खुशी का छाए, प्यार की खुशबू फैले और नफरत को मौत आ जाए। भारत फिर जन्नत बन जाए ये अरमान हमारा है। वाह 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 वाह। शुक्रिया हजरात। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक बंद पढ़ती हूँ। मैं बहुत गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं गई हूँ। मैं एक बंद तो सुन ले मेरे भाई प्लीज। लेकिन जो बात अपने इस प्यारे से मुल्क में, अपने इस हिंदुस्तान में, दूसरे किसी भी मुल्क में नहीं, मैं इस बंद के जरिए आप सब तक पहुँचाती हूँ। अगर मैंने सच कहने की कोशिश की है तो मैं चाहती हूँ कि एक शख्स से मुझे दुआएं मिले, जितने भी लोग बैठे हैं शिरकत चाहती हूँ। बंद पढ़ती हूँ, देखें कि दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। हमने दुनिया घूम के इतनी बाशबी ना जानी, करते हैं माँ बाप की खिदमत आज भी हिंदुस्तानी। सारे जहां से आज भी अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, शबीना अदीब साहिबा